اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھ لے اس کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی، غیب سے اسے مال و زر اور مال و دولت انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین و کرام، فجر کی نماز کے بعد جو بھی میرا بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدت پریشانی میں مبتلا ہے، ان ناظرین کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً ہی اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک سے جو رزق کا اور مال و دولت کا جو طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ آج کے وظیفے میں ایک خاص تسبیح کا آپ کو ایسا عمل بتانے لگا ہوں جسے صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ پھر اسے بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور مال و دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین و کرام، آج آپ کے لیے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے سے پہلے دو الفاظ کا بے حد طاقتور اور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے انسان کو سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ خیر، ہمیں بھی اپنے دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کچھ بھی تجھے تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھ کو دوں گا، اس سے بہتر ضرور عطا کروں گا۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ رب العزت سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کریں گے تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، پھر نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے اور جیسا بھی مانگتا ہے اسے غیب کے خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، اللہ والوں، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ وہ ناظرین، میں تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں،
मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है या नाफरमान और बेअदब शोहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए, जिस जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह इज़्ज़ा वजल। आज रब से मांगने का वक्त है। आज रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुश नसीब इंसान है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी बेबरकतों का खात्मा चाहते हैं, वो लोग हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें, पूरी तवज्जो से रब से मांगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्शे इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी और कामरानी को आपका मुकद्दर बना देती है। इस वजीफे का तरीका बड़ा ही सादा और आसान सा है। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपने इस वजीफे को सही नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ और मुकव्वल तवज्जो यकसुई के साथ, कामिल ईमान और यकीन के साथ कर लिया तो आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह इज़्ज़ा वजल। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस इंसान के लिए बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं, इसीलिए तो रब ने फरमा दिया है कि जब भी और जिस किसी भी नियत के लिए या फिर आप लोग परेशान हो या परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो या फिर गर्ज कोई भी हाजत हो, कैसा भी मसला हो, तो अपने रब से ही रिजू करें, जो आपका और तमाम मखलूक का खालिक भी है और राजिक भी है और मालिक भी है, जिसने इस कायनात को बनाया है। आपने रब के सफाती नाम पढ़ने हैं। लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिर्फ 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी या किसी भी काम में हाथ डालते हो तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद वजीफ़ा है। तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आपको ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका वजीफा असर नहीं करेगा। आप नमाज फजर अदा कर लें और उसके बाद आप वहीं जाए नमाज पर बैठ जाएं और सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आप लोग पढ़ लें। एक बार आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है और ये अमल का ही हिस्सा है। और इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी सबसे मुजर्रब दुरूद है। मैं हर तमाम अपनी वीडियो में आपको ये बात बतलाता हूँ। कोई भी अमल करा करें, कोई भी वजीफा वाला करें, आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना होता है। अगर आप ये दुरूद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फयूज़ व बरक़ात हासिल होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और दुरूद पढ़ेंगे तो असर नहीं करेगा, बेशक असर करेगा, लेकिन कि हर दुरूद पर अफजल दुरूद है। तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी ही आप लोगों ने पढ़ लेना है। एक बार मेरे साथ भी दोहरा लें अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको आप लोग 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। कम अज कम 3 बार पढ़िएगा। तो मैं आपको इसकी कम से कम तादाद ही बताता हूँ। 3 से कम आपने नहीं पढ़ना। 3 बार कम अज कम आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद ध्यान से सुने। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो नोट फरमा लें। अगर आपको याद ना रहे इस तरतीब को तो आप लोग नोट फरमा लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने उसके बाद 3 बार, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक की। दुनिया के हर मुसलमान को ये सूरत ज़बानी याद होती है, तो लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ 3 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है और उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ 11 मरतबा
सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने या मजीदू या मजीदू या मजीदू आराम आराम से अच्छी तरीके से अच्छी तरह से रुक रुक के इखलाक के साथ सिर्फ 11 मरतबा या मजीदो पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने 11 मरतबा ही उसके बाद आपने 11 मरतबा ही आप लोगों ने सूरतुल इखलास पढ़ लेनी है। सूरतुल इखलास 11 मरतबा पढ़ लें, ठीक है। सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद सूरतुल इखलास आप लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद आपने 11 मरतबा या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ो ये पढ़ना है। 11 बार या लतीफ़ो पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने अच्छी तरीके से या लतीफ़ो पढ़ लिया। उसके बाद 11 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें या वदूदो। उसके बाद 11 मरतबा या मुक़तदिरु या मुक़तदिरु या मुक़तदिरु 11 मरतबा अच्छी तरीके से आराम आराम से अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा। उसके बाद 300 मरतबा 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ही बार सिर्फ 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद दोबारा आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 3 मरतबा, या अव्वल में आपने जितनी बार पढ़ा उतनी ही बार आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। ये दौलत वाली तस्बीह थी, ये दौलत वाला अमल था, ये मुकम्मल और जामे तस्बीह है। मालो ज़र के जितने मामलात होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके वो सारे मामलात को हल फरमा देगा, आपको माला माल फरमा देगा। आपकी तमाम जो भी बंद किस्मत के ताले थे अल्लाह पाक उन सब को खोल देगा, आपकी गैब से मदद होगी। आप ये तस्बीह जो मैंने आपको बतलाई है आपने उसी अंदाज से उसी तरतीब के साथ उसी अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। कहीं आप लोग नोट फरमा लें, अगर आप लोग भूल जाएं तरतीब वैसी रखिएगा, आगे पीछे नहीं करिएगा। तो मेरे भाइयों एक मुकम्मल और जामे तस्बीह आपके खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुआ था, आपने इसको पढ़ लिया। इसके बाद आप लोगों ने दुआ मांगनी है, दुआ अच्छी तरीके से मांगिएगा। दुआ में भी अव्वल आप लोग एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और आखिर में भी एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और दरमियान में अपनी जो भी हाजतें आपको मांगनी है आप अल्लाह पाक के हुजूर वो तमाम हाजत को एक अच्छे अंदाज में आप लोग मांग लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम दिली हाजतों को पूरा फरमाए, उनकी तमाम दुख दर्द परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह पाक उनका खात्मा बिल खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।